Stop the bleeding. I repeat its meanings again. Please write them. Stop the bleeding, खून के बहाव को रोकना. Bandage means पट्टी. Continuously, लगातार या मुसलसल. Pressure means दबाव. Elevate, ऊपर उठाना. चेकिंग, मुआयना करना. टीचर चेकिंग. हाँ, चेकिंग, मुआयना करना. नेक्स्ट इज डिसलॉज, हटाना. डिसलॉज, हटाना. क्लॉट, जमा हुआ खून. रिज्यूम, दोबारा शुरू होना. स्पर्ट्स, फूटना. मिस स्पर्ट्स का रिपीट करते हैं. फूटना. फूटना, स्पर्ट्स. ओके. मेडिकल असिस्टेंस, तिब्बी मदद. ओके. Javeria, read this paragraph. Stop the bleeding. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own if they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible, elevate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. Okay. Stop the bleeding, खून के बहाव को रोकना. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. मामूली जख्म या खराशें आम तौर पर या खराशों से आम तौर पर खून का बहाव खुद ही रुक जाता है. मामूली जख्म और खराशों से आम तौर पर खून का बहाव खुद ही रुक जाता है. If they do not, अगर वो नहीं रुकता, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. अगर वो नहीं रुकता तो एक साफ कपड़े या पट्टी से उस पर हल्का दबाव डालें. अगर वो नहीं रुकता तो एक साफ कपड़े या पट्टी से उस पर हल्का सा दबाव डालें. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds. 20 से 30 सेकंड तक इस पर दबाव लगातार डाले रखें. 20 से 30 सेकंड तक इस पर लगातार दबाव डाले रखें. एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वुंड, जख्म को ऊपर उठा दें. डोंट कीप चेकिंग टू सी, ये देखने के लिए मुआयना ना करते रहें इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, कि खून का बहाव रुक चुका है. बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि ये जमे हुए खून को हटा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है. दैट इज फॉर्मिंग, जो बन रहा है. एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून के बहाव की दोबारा शुरू करने की वजह बन सकता है. इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फूट पड़ता है और continuous flowing after continuous pressure या मुसलसल दबाव पर भी उसका बहाव जारी रहता है, seek medical assistance, तो तिब्बी मदद तलाश करें. Okay girls, Mehrunisa, Alim, Fatima, Javeria and Radia. But if you have any problem, you can ask me. नो मिस, नो प्रॉब्लम. Yes, Alim. टीचर ठीक है. नो टीचर. Okay. Now next paragraph is clean the wound. जख्म को साफ करना. Rinse out,
धोना, rinse out, धोना. Irritate, सोजिश, irritate, सोजिश. Actual wound, असल जख्म. Actual wound, असल जख्म, dirt, गंदगी, debris, गलाजत, debris, गलाजत. tweezers, चिमटी, tweezers, चिमटी. अल्कोहल को आप एज इट इज लिखेंगे, अल्कोहल. पार्टिकल्स मीन जर्रात, पार्टिकल्स जर्रात. reduces, कम करना, reduces, कम करना. risk, खतरा, risk means खतरा. tetanus, तशन्नुज, tetanus, तशन्नुज. Okay, Fatma, read this paragraph. Clean the wound. Rinse out the wound with clear water and a washcloth. But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. If debris still remains, see your doctor. Through cleaning, reduce the risk of infection and tetanus. Okay. Clean the wound means जख्म को धोना या जख्म को साफ करना. Rinse out the wound with clean water. जख्म को साफ पानी से धो लें. To clean the area around the wound, जख्म के इर्द गिर्द की जगह को साफ करें. Use soap and a washcloth. साबुन और एक धुले हुए कपड़े को इस्तेमाल करें. यानी जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और एक धुले हुए कपड़े का इस्तेमाल करें. But soap can irritate the wound. लेकिन साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है. So try to keep it out of the actual wound. इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखें. इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें. If dirt or debris remains in the wound after washing, अगर धोने के बाद भी जख्म में गंदगी या गलाजत बाकी रह जाती है, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. तो अल्कोहल में धुली चिमटी को ज़रात हटाने के लिए इस्तेमाल करें. I repeat this again. अगर गंदगी और गलाजत जख्म में धोने के बाद भी बाकी रह जाती है या अगर जख्म को धोने के बाद गंदगी या गलाजत बाकी रह जाती है तो अल्कोहल में धुली चिमटी को ज़रात हटाने के लिए इस्तेमाल करें. If debris still remains, अगर गलाजत फिर भी रह जाए, see your doctor. अपने डॉक्टर से मिलें. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के खतरे को कम करता है. या मुकम्मल तौर पर सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के खतरे को कम करता है. Yes, girls. Beta, if you have any problem, you can ask me. Mehrunisa, Javeria, Aline, Fatima. No problem. Okay. Now look at page number 39. Apply an antibiotic. Yes, Mehrunisa, read this paragraph.
तो मेहरुनिसा का इंटरनेट सही नहीं चल रहा। मेहरुनिसा का। अच्छा अलीन, यस। इधर भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। चलें फातिमा आप रीड करो। Apply an antibiotic. After you clean the wound, apply a thin layer of antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in same ointments can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. Okay. First write its meanings. Antibiotic, जरासीम कुश दवा। एंटीबायोटिक, जरासीम कुश दवा। लेयर, थिन लेयर, पतली तह। थिन लेयर, पतली तह। एंटीबायोटिक क्रीम, यही होगा कि जरासीम कुश क्रीम। ऑइंटमेंट, मरहम। ऑइंटमेंट मीन्स मरहम। सरफेस, सतह, मॉइस्ट, तर रखना, तर। प्रोडक्ट्स मीन्स मसनूआत। प्रोडक्ट्स मीन्स मसनूआत। हील, वोंट हील, जख्म का भरना। हील होता है भरना, यानी जख्म का भरना। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, कुदरती जख्म भरने का अमल। इंग्रेडिएंट्स, अज्जा। इंग्रेडिएंट्स, अज्जा। माइल्ड, हल्का। रैश, वर्म। वाओ रे मी, वर्म। ओके। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कुश दवा लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वोंड, जख्म साफ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट। जख्म को साफ करने के बाद इस पर एक जरासीम कुश क्रीम या मरहम की एक पतली सी तह लगाएं टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, जो कि सतह को गीला रखने में या तर रखने में मदद करता है। I repeat this line again. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. जख्म को साफ रखने के बाद सतह को गीला रखने में मदद करने के लिए जरासीम कुश क्रीम या मरहम की एक पतली तह लगाएं। The products don't make the wound heal faster. ये मसनूआत जख्म भरने को तेज नहीं करते, but they can help your body's natural healing process work fast. बल्कि ये आपके जिस्म की कुदरती जख्म भरने के अमल को तेज कर सकते हैं। I repeat this line again. ये मसनूआत जख्म भरने को तेज नहीं करते, बल्कि आपके जिस्म के कुदरती जख्म भरने के अमल को तेज कर सकते हैं। Certain ingredients in some ointments, कुछ मरहमों में खास किस्म के अज्जा कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों में हल्का सा वर्म पैदा करने की वजह बन सकते हैं। कुछ मरहमों में खास किस्म के अज्जा कुछ लोगों के अंदर हल्का वर्म पैदा करने में मदद कर सकते हैं। If a rash appears, अगर वर्म जाहिर हो, stop using the ointment, मरहम का इस्तेमाल रोक दें। If a rash appears, अगर वर्म जाहिर हो, stop using the ointment, मरहम का इस्तेमाल रोक दें। ओके।
Now, Javeria, read next paragraph. Cover the wound. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. Okay. Cover means ढांपना. Harmful, नुकसानदेह. बैक्टीरिया का आप बैक्टीरिया ही लिखेंगे. Okay. Infection, you will have to write it as it is in Urdu form. Unlikely, के इम्कान को नामुमकिन बनाना. Unlikely, के इम्कान को नामुमकिन बनाना. Exposure, खुला रखना. Exposure means खुला रखना. Okay. Cover the wound, जख्म को ढांकना. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. Out means दूर रखना या बाहर रखना. बाहर रखना कुछ सूटेबल नहीं है, इसलिए दूर रखना ज्यादा बेहतर है. ठीक है. पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. After the wound is healed enough, जख्म के काफी हद तक भर जाने के बाद to make infection unlikely, इन्फेक्शन के इम्कान को नामुमकिन बनाने के लिए exposure to the air will speed wound healing. हवा में जख्म को खुला रखना जख्म बढ़ने की रफ्तार को तेज करेगा. ठीक है. एक्सपोजर यहाँ पर देखें, वोंड यहाँ पर नहीं जिक्र आ रहा, लेकिन लास्ट में वोंड हीलिंग लिखा हुआ. इट मींस किस चीज को खुला रखना, जख्म को. तो आप ये वर्ड ऐड कर सकते हैं. ठीक है. आई रिपीट दिस अगेन. जख्म के काफी हद तक भर जाने के बाद इन्फेक्शन के इम्कान को नामुमकिन बनाने के लिए जख्म को हवा में खुला रखना जख्म भरने की रफ्तार को तेज करेगा. ओके बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. No problem, miss. नेक्स्ट इज चेंज द ड्रेसिंग. पट्टी बदलना. जवेरिया, रीड दिस.